Assalamualaikum guys. So as we talked in the last video about the suspense accounts, what are suspense accounts and what are the errors that could have been occurred in our books of accounts, and we talked about how to correct the error of omission in casting error. In this video we'll talk about how to correct all of the other errors that are transposition errors, single entry error, same side error, principal, commission, compensating, complete reversal, error of original entry. So this is done by a 3-step process. Maybe some of you know how to do it directly, some of you don't know how to do it directly, but this is a way that could be done. If you do it with this way, it would be easy for you to correct the errors. So what is the 3-step process? The 3-step process step 1, you write the original transaction or the entry, general entry. Okay. Step number 2 is you write what the entry is done. मतलब जो गलत एंट्री लिखी है या जो भी एंट्री हुई है, you make the general entry for that thing. Step number 3, it also has 3 steps. So yeah, number 1, cancel the common transactions in step 1 and 2. Okay. Number 2, record step 1 and reverse step 2. What does this mean? That जो cancel तो कर दिया पहले आपने ना, you cancel these transactions, common transactions, but now what you have to do, जो remaining transactions आपको दिख रहे हैं in general entry आपके step 1 और step 2 में, you have to record the step 1 वाला transaction and then you have to reverse your step 2 वाला transaction. मतलब अगर step 2 में it was a credit of $300, so what you will do in general entry, you will make a debit of 300. And अगर डेबिट ऑफ स्टेप 1 में डेबिट ऑफ 300 था तो यू रिकॉर्ड द डेबिट ऑफ 300 एज इट इज़. ओके. व्हाट इज द थर्ड प्रोसेस? थर्ड थिंग इन दिस थर्ड स्टेप is you have to balance the DR and CR side, debit and credit side, with a suspense account. How you will do it, I'll show it to you in a while. So इसको मैं explain करूँगा through examples. सही है. अब ये जितने भी examples हैं, let's say कि ये एक ही business के examples हैं, and then I'll continue with another thing in this examples. So number 1 example is sales to Mr. X were correctly recorded. We'll be going in a level of difficulty. सबसे easy से फिर मुश्किल जाएंगे example में. Correctly in Mr. X account, but were credited to sales return account by mistake. Sale was of $600. सही है. So what should be the original entry that you should do as step 1? So step 1 would be आपकी जो normal entry होगी वो Mr. X तो उसने सही रिकॉर्ड हुआ है, सही है, और Mr. X को आपने डेबिट करना है and then sales credit. This is the original entry that you should have done. सही है. Step 1. With this step 2, you record the entry data that has been done. Mr. X account में जो सही रिकॉर्ड हुआ, so you write Mr. X as 600 and then और sales return में they have credited. Okay, sale return credit हुआ तो यहाँ sale return credit. अच्छा, now what was the third step? Third step का first part was to cancel
थर्ड स्टेप का फर्स्ट पार्ट वाज टू कैंसिल द कॉमन एंट्री. सो दिस इज़ अ कॉमन एंट्री, सही है, एंड दिस इज़ अ कॉमन एंट्री. सो दिस इज़ कैंसल्ड आउट. अब बचा क्या? अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या कहता है कि रिकॉर्ड स्टेप 1, सही है, स्टेप 1 रिकॉर्ड करा. स्टेप 1 वाज सेल्स ऑन क्रेडिट साइड, सही है, एंड व्हाट वाज स्टेप 2? सेल रिटर्न. स्टेप 2 को रिवर्स करना है. सो सेल रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, तो सेल रिटर्न को क्रेडिट करा. सो दिस इज सेल रिटर्न. And the last part of the third step said कि you have to balance it off, but यहाँ पे debit is equal to credit side, so you don't need to balance it off. This was the most simplest way. इसमें कोई suspense account का नहीं आ रहा. This is just compensating error जिसमें suspense account का काम नहीं हो रहा. Okay, moving on to the second example. सही है. Rent by cash 350 was debited to cash account by mistake. सो बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ बोला है कि कैश अकाउंट में मसला है. सो रेंट अकाउंट को कुछ नहीं बोला. सो व्हेन देयर इज कुछ भी नहीं बताया हुआ जब आपको. सो दिस मीन्स के योर एंट्री इज़ करेक्ट. So there is an error in cash account but no error in rent account. अच्छा, moving on to 3-step process. सही है. What will be the first step? You record the original transaction that should have taken place. So rent account debit, सही है, by 350. Cash account credit by 350. Okay, step 1. What's the step 2? You record the transaction that has been done. So rent is correct, सही है, rent account 350 हुआ है, बट कैश इज़ डेबिटेड. कैश को भी 350 यहाँ डेबिट हो गया. ओके, सो व्हाट इज़ द कॉमन ट्रांजैक्शन दैट यू शुड कट आउट? रेंट डेबिट एंड रेंट डेबिट. ओके, इन थर्ड स्टेप व्हाट यू विल डू? रिकॉर्ड दी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, दिस वन. सो कैश क्रेडिट था तो यहाँ कैश क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, सही है. और फिर यहाँ पे क्या कहता है? स्टेप 2 को रिवर्स करना है. सो स्टेप 2 में कैश डेबिट था तो यहाँ पे आपने कैश फिर से क्रेडिट कर दिया. ओके, बट देयर इज़ नो एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. सो क्रेडिट साइड आपके पास है बट देयर इज़ नो डेबिट साइड. यहाँ डेबिट साइड पर आपको कितना चाहिए? 700 चाहिए. 700 लिखा विद अ सस्पेंस अकाउंट. ओके, गॉट इट. और यहाँ पे फिर आपने एक सस्पेंस अकाउंट होगा आपके पास. यहाँ डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट आया है तो सस्पेंस अकाउंट में यू विल राइट कोई एक ब्रॉट डाउन होगा उसका, सही है. लेट्स से कि जो हमने ऊपर बात पहले फर्स्ट वीडियो में भी टॉक्ड अबाउट, देयर वाज अ ब्रॉट डाउन ऑफ 2000. ओके, सो यहाँ हमने 700 लिख दिया इन सस्पेंस अकाउंट्स. ओके, ओके, सो मूविंग ऑन, आपका यहाँ आएगा कैश. यू शुड गिव अ रेफरेंस. तो कैश के थ्रू आपका रेफरेंस आ गया 700. गॉट इट. आगे मूव करते हैं. वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड एग्जाम्पल, सही है. So what is our third example? Let's see. So our third example is there was a purchase of motor vehicle. This is a bit tricky one. Okay, purchase of motor vehicle of $3,600. सही है. Debited to purchase account as $360. Okay, and credited in bank as $6,300. So what should be our first step? Original transaction क्या होना चाहिए? Original transaction should be motor vehicle debit, सही है, motor vehicle debit 3,600 and bank credit 3,600. What is our transaction that has taken place? Purchases debit as 360 and bank credit as 6,300. Okay, so what should we do for the third step? हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं थर्ड स्टेप. यहाँ पे you won't see any common transaction, सही है. So आप जो है उसी को फर्स्ट स्टेप छोड़, आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट छोड़ दोगे. कॉमन ट्रांजैक्शन आप कट आउट नहीं करोगे. यू विल जस्ट मूव ऑन टू the second part of the third step, which is record the original transaction, reverse the
सेकेंड ट्रांजैक्शन। सो आपका यहाँ पे ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा, और ये आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड होगा। सो MV रिकॉर्ड हुआ 3600 का, ये बैंक आपका रिवर्स होना है। सो बैंक रिवर्स हुआ 6300 का। देन देर इज़ दिस बैंक अकाउंट, सही है, जो 3600 का ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ, ये परचेजेस रिवर्स करना है, तो ये 360 का रिवर्स हो गया। ओके, सो लेट्स सी कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। सो एज यू कैन सी, ये आपकी ये वाली साइड डेबिट साइड बड़ी है। सो यू विल मेक अ सस्पेंस अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, सही है, और यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी 5940, ठीक है। अब व्हाट यू कुड हैव डन, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ 2 बैंक अकाउंट लिखे हैं, सो यू कुड हैव जस्ट डन कि आपने इन दोनों को कैंसिल आउट करना था, सही है। इधर आपने देखा कि बैंक 3600 क्रेडिट पे और डेबिट पे 6300 है, तो इन दोनों का बैलेंस लिख देते। सो 6300 माइनस 3600 इज़ 2700। सो इंस्टेड यू कुड हैव रिटन बैंक के अंदर 2700, और इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। ओके, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ गया 5940 का। हम अपने पुराने सस्पेंस अकाउंट पे जाते हैं जो यहाँ बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखो कि सस्पेंस अकाउंट इज़ 5940 ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपके पास क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया 5940, ठीक है। इसको रेफरेंस आप क्या दे सकते हो, इसका रेफरेंस आप दोगे मोटर व्हीकल अकाउंट, सही है, फॉर जस्ट अ रेफरेंस। Okay, then moving on to our last example, number 4. Example number 4. So sale to Mr. X of 560 were debited in bank as 650 and credited to sale return as 560. So what should be our first step? Record the original transaction that should have taken place. So bank 560, Mr. X 560, क्या रिकॉर्ड हुआ है? बैंक 650 S returns 560. ओके, सो आप थर्ड पार्ट पे गए, थर्ड स्टेप। अच्छा, कैंसिल आउट द एरर, कैंसिल आउट द कॉमन ट्रांजैक्शन। देयर इज़ नॉट एनी कॉमन ट्रांजैक्शन इन दिस प्लेस। सो आप क्या करोगे, आपने ओरिजिनल लिखा बैंक 560 का, ये वाले को रिवर्स करा तो एस रिटर्न हो गया 560 का, सही है। ओह सॉरी, दिस शुड हैव बीन सेल्स नॉट मिस्टर एक्स, सही है। यहाँ पे बैंक को रिवर्स करना है। अब बैंक डेबिट को बैंक रिवर्स करा 650 का, यहाँ पे आपने सेल्स रिकॉर्ड करी 560 की। ओके, सो अब आपने इसको अगर टोटल करा, सो दिस साइड इज़ ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड। तो आपने यहाँ डेबिट में सस्पेंस लिख दिया 90 का। ओके, अब यहाँ देखो, अब आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे आया 90 का विथ आपका रेफरेंस टू बैंक। यहाँ आप गए, डेबिट पे बैंक लिखा, 90 का रेफरेंस दे दिया। नाउ यूजुअली क्या होता है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं हो रहा होगा, राइट। अब लेट्स से कि ये आपके बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं दिया हुआ, ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास नहीं दिया हुआ। सो आपका सस्पेंस अकाउंट का आपको बोल सकते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रॉट डाउन बैलेंस। सो आपने ब्रॉट डाउन बैलेंस अपना कैलकुलेट करना है। ओके, सो द बैलेंसिंग अमाउंट दिस इज 790, तो यहाँ पे आपका इस वक्त आएगा ब्रॉट डाउन आएगा यहाँ पे 5940 माइनस 790 इज़ 5150, आपका ब्रॉट डाउन आ गया। ओके, सो दिस इज़ योर अकाउंट। इफ़ अगर आपके पास दिया हुआ होता, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये ब्रॉट डाउन दिया हुआ होता, सही है, एंड देन यू हैव टू मेक योर सस्पेंस अकाउंट। तो ये ब्रॉट डाउन दिया हुआ और यू हैव टू मेक अ सस्पेंस अकाउंट, देन यू व्हेन यू चेक योर सस्पेंस अकाउंट इट शुड बैलेंस। आपके पास कोई एक्स्ट्रा डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड नहीं होना चाहिए।
So this was our suspense account, सही है, and that was all for our suspense accounts. We'll meet you in next video inshallah. Allah Hafiz.